Suppose two numbers A and B are arithmetic mean is A. Here A is A plus B upon 2. Suppose A and B, two number geometric mean is G. The geometric mean of two number, that is root of A into B. Here, now first property, the number AM stand for A greater than equal to G. G stand for G. You have to first prove that. Okay. First property, that is what? Arithmetic mean greater or equal to geometric mean. आप लोग के सबके ऑडियो वीडियो ऑन होने चाहिए. इंस्ट्रक्शन है, मैं बीच बीच में देखता रहूंगा, अदरवाइज आप रिमूव हो जाएंगे. डोंट से. अभी मैं बोल रहा हूँ, अपना क्लियर रखें, ऑडियो विजुअल एंड स्क्रीन विजन. ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ. First, that is A is greater than or equal to G. This one you have to prove that. So A is what? Two number A is what? A plus B by 2, and G is what? Root of AB. Take the LCM. So A plus B greater than equal to 2 times of root of AB. If shifting towards this one, A plus B minus 2 times of root of AB greater than or equal to 0. That is what? That is your, आप इसको ले सकते हैं root A minus root B whole square greater than equal to 0. This is true. So you can say that two number of arithmetic mean is always greater than or equal to their geometric mean. This is your first property. Property related to arithmetic mean and geometric mean. Property related to, this is your arithmetic mean and geometric mean. This is the first case. Second case, in last class in 10th standard, you have learned about the two numbers are given. Number that is A and B. Suppose two numbers given है. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्डअप करनी थी, तो आप लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. दैट नंबर्स आर ए एंड बी. टू नंबर्स आर ए एंड बी. सो एक्स स्क्वायर सम इज व्हाट? ए प्लस बी इनटू एक्स, एंड देयर प्रोडक्ट इज व्हाट? ए इनटू बी इक्वल टू 0. ठीक, बट ए प्लस बी इज व्हाट? ए प्लस बी फ्रॉम हियर यू कैन राइट इट 2a. So a plus b की जगह में 2a लिख सकता हूँ. 2a into x plus a into b. ab is what? G square, capital G square. So this is what? This is the quadratic equation built up by arithmetic mean a and geometric mean G. अगर आपको quadratic equation develop करनी है, arithmetic means and geometric means are given, you can easily build up by this formula. आप सीधे फॉर्मूला पुट कर लेंगे और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी. फर्स्ट केस, इफ सपोज अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स आर नॉट गिवन, अगर ये गिवन नहीं है, द टू नंबर्स आर गिवन, देन यू कैन यूज दिस वन फॉर्मूला, सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0. इन प्लेस ऑफ सम यू कैन राइट a प्लस b, इन प्लेस ऑफ प्रोडक्ट यू कैन राइट a इनटू b, और a प्लस b की वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 2a. a इनटू b की वैल्यू ले लेंगे g स्क्वायर. सो यू कैन डेवलप इन दिस वन सेकंड मैनर. तो दो प्रोसेस हो गए. अगर आपको अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट दिया है तो आप यहां से राइट यूज कर सकते हैं. अगर नंबर्स पता है तो इस इक्वेशन यूज करके फिर आप फॉर्म कर सकते हैं. दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मीन्स अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी. क्लियर? एंड नाउ थर्ड प्रॉपर्टी. अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे डिस्कस करता हूं आपसे. Suppose equations are built up. आपकी equations बन चुकी है. Equation like that, x square minus 2ax plus g square equal to 0. ये आपकी equation build up हो चुकी है, right? अब आपको using d formula इसके factorization करना है. तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a. क्लियर? अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें. b माइनस दैट इज 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज व्हाट?
1, C is what? G square upon 2A. तो x is equal to 2A plus minus 4A square minus 4G square. तो 4 कॉमन ले लेंगे, बाहर आके 2 हो जाएगा. तो बचा क्या? That is A square minus G square divided by 2. 2 is the cancel out. तो आपके पास बचा x equal to A plus minus root of A square minus G square. इसके आपने फैक्टर किए a plus G into A minus G. Taken one positive value and one is negative value. एक बार पॉजिटिव ले लें, एक बार नेगेटिव ले लें. तो जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू a प्लस रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी. अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो क्या आएगा? a माइनस रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी रिलेटेड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. क्लियर? तो हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड. और लास्ट टू लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कशन लेवल था हमारा कि एपी के सम के क्वेश्चंस, एनएट टर्म के, देन जीपी के सम के, एनएट टर्म के क्वेश्चंस. फिर उसमें एक पार्ट्स कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं अभी आपके जीपी में. ठीक है, अब उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं. आई थिंक प्रॉपर्टी दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड लास्ट 5 to 10 मिनट्स आई विल डिस्कस अगेन, राइट, इफ एनी प्रॉब्लम. एंड नाउ अब मैं डिस्कशन करता हूं. जैसे मैंने बोला था कि सम स्पेशल प्रॉपर्टी जो होंगी आपकी. स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब अब आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चन बिल्डअप हो जाएंगे. स्पेशल क्वेश्चन बिल्डअप होंगे कैसे? वो आपके होंगे जब आप रिपीटिशन के कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे. जैसे फाइंड द सम ऑफ 7, ऐसे लिखेगा, फाइंड द सम ऑफ 7, 77, 777 एंड सो ऑन. कुछ इस तरह से लिख देगा वो. तो अब इसका सम ऑफ एन टर्म निकालना, दैट इज एसएन. तो 7 प्लस 77 प्लस 777 एंड सो ऑन. कुछ ऐसा लिख लेंगे, राइट. नाउ 7 टेकन एज ए कॉमन, तो ये आ जाएगा 1, 11, 111 एंड सो ऑन. अब मुझे एक सीरीज डेवलप करनी है, तो मैंने क्या किया, जो टूवर्ड्स 0 तरफ जाए तो 9 इज द नियरेस्ट नंबर, तो 9 से मल्टीप्लाई एंड 9 से डिवाइड कर लिया मैंने. तो लिखा 9, 99, 999 एंड सो ऑन. कुछ इस तरह से मैंने सीरीज डेवलप कर ली. नाउ 9 की जगह लिख दिया मैंने 10 माइनस 1, 99 की जगह लिखा 100 तो लिखा 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 की जगह लिखा 10 क्यूब 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन. नाउ अब आपकी सीरीज डेवलप हो गई 10 की. तो क्या क्या 10, 10 स्क्वायर 10 क्यूब, तो ऐसे लिखते गए 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन. और ये लास्ट में आया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो एन तक क्या आएगा? माइनस एन. माइनस 1 माइनस 1 माइनस एन तक आएगा माइनस एन. अब आपके नंबर्स बन गए, ये नंबर्स बन गए. अब आपके जीपी सीरीज बन के तैयार हो गई. ए इज व्हाट? ए इज 10, आर इज व्हाट? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 10. तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यूज द फॉर्मूला नंबर 1. तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे. ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 माइनस एन एस सच 7/9, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1. 10 से 1 गया 9, एलसीएम लिया तो माइनस 9n अपॉन 9. 9 इंटू 9 लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 81. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 7/81. 10 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 9n. दिस इज योर फाइनल आंसर. इफ दे आस्क फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो n की जगह आप 10 पुट कर देंगे. If they ask find the sum of first 5 terms, you put the value of 5 in place of n. तो ये कैटेगरी तैयार हुई जब आपके स्पेशल केस में कुछ रिपीट करके क्वेश्चंस आएंगे. रिपीटिशन कुछ इस तरह से बढ़ेंगे 7, 77, 777 एंड सो ऑन. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्वेंस सीरीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इसमें सीक्वेंस सीरीज में आपका जो थर्ड एक्सरसाइज है, जो थर्ड एक्सरसाइज दैट इज 9.3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. 9.3 के ऊपर भी डिस्कशन लेवल है मेरा, राइट. तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करेगा, लेंदी करेगा, तो डेसिमल नोटेशन में आपसे बात करेगा. ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं नंबर्स रिपीट में, एक तो विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल. जैसे ये नंबर लिखा मैंने कुछ ऐसे लिखा. क्लियर?
अब देखो मैं विदाउट डेसिमल क्वेश्चन करता हूँ इसी को। सेम क्वेश्चन विदाउट, जैसे लिखेगा वो आपसे कुछ ऐसे लिखेगा, पॉइंट 0.8, 0.88 एंड सो ऑन। ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से। सबसे पहले लिखा तो SN, तो फर्स्ट स्टेप SN 0.8, 0.88, 0.888 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये लिखा आपने। अगर मैं इनसे से 8 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा ना इसे, या पॉइंट उठा के 8/10, 88/10 स्क्वायर, 888 दिस, तब आप 8 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 1/10 आएगा तो 1/10 को क्या लिखूंगा, 1 - 1/10। ठीक है, तो मैं अगर 8 कॉमन लूं तो ये बचेगा 0.1, यहां लेंगे 0.11/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा क्लास में डिस्कशन लेवल पे था। ये आप डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं, नो इशू, यानी 8/10 ऐसे सीरीज बना के, एक दो बच्चों ने ऐसे भी किया है, 10 का स्क्वायर, 888, 10 का क्यूब, ऐसे डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं। अब आप 8 कॉमन लेंगे तो ऐसे वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। तो 1/10 प्लस 11/10 स्क्वायर, 111/10 क्यूब। तो 1/10 को जब 8 कॉमन लेंगे, 1/10 को सब्ट्रैक्शन के मोड में लिखें, यानी 1 - 1/r, 1 - 1/8 स्क्वायर, 1 - 1/10 क्यूब। तो इस मोड से भी आप जा सकते हैं आसानी से। तो ये सीरीज फिर बन जाएगी, यानी जब कॉमन लेंगे तो फिर ऐसा आएगा सीरीज में, 1 - 1/10, 1 - 1/10 स्क्वायर, 1 - 1/10 क्यूब, इस तरह से। तो ये जो 1 आएगा ये n हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये n है। अब ये आपकी जीपी सीरीज बन गई। ए कितना आ जाएगा, 1/10, आर कितना आ जाएगा, 1/10। तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 कौन सा, कल बताया था मैंने, ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, क्योंकि ए की वैल्यू 1/10 है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1/10, लेस देन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब इसका समेशन निकालेंगे। तो आप इस तरह की कैटेगरी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डेसिमल और विदाउट डेसिमल। क्लियर? फिर इसमें हम प्रॉपर्टी जो मैंने भी बताई थी, एएमजीएम, तो डायरेक्ट 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन भी आपको दे सकते थे। जैसे ए की वैल्यू दे दी, जी की वैल्यू दे दी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मैं आपसे पूछ सकता था कि उसके जो रूट्स हैं उसका रूट्स का नेचर बताएं। ठीक है, रूट्स का नेचर मतलब डी के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे मैं, कि डी लेस देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, इस वाले कैटेगरी में क्वेश्चन में भी मैं जा सकता हूँ डिस्कशन लेवल पे। ठीक, इसके बाद मैं फिर इसी जीपी की बात करूंगा। इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई थी, प्रॉपर्टी बताई थी आपको, याद करें, सेम क्वांटिटी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सेम क्वांटिटी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था आपको, उसके लिए वर्ड यूज किया था मेरा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करके, उसके लिए यूज किया था मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, हम समझ जाते हैं वहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई होता है। जैसे मैंने लिखा है a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, फिर लिख दिया मैंने जैसे यहाँ पे b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस सी एक्स, कुछ इस तरह से। फिर आगे लिख दूंगा c प्लस जी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, हम समझ जाते हैं यूजिंग द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बाद में लिए फिर से बता देता हूँ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोसेस है जो हम रेशियो वाली प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। रेशियो इन द सेंस, अगर आपके पास लिखा है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यू कैन यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है, दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। जो एलएचएस में करा है वही काम आरएचएस में, दोनों को ऐड कर देंगे, एलएचएस से आरएचएस को माइनस कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जीपी में बहुत कुछ यूज होगा, क्यों, बिकॉज जीपी में आर फ्रैक्शन में होता है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म।
तो सेम ऐड और सब्ट्रैक्ट है, समझ जाएंगे जीपी में कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूँ कंपोनेंटो और डिविडेंडो, तो दोनों को पहले मैं ऐड कर दूंगा। तो a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर दूंगा। a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स शुड इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लूंगा b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करूंगा b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। तो प्लस बी एक्स, ए और ए कैंसल आउट, सी एक्स कैंसल आउट, बी से बी कैंसल आउट। तो देखें ए और ए यहाँ लिख रहा हूं मैं, इस स्टेप में लिख रहा हूं यहाँ पर इधर। तो a प्लस ए कितना हो गया, दैट इज 2a। bx और bx कितना हो गया, दैट इज 2bx। b प्लस b कितना हो गया, दैट इज 2b। cx प्लस cx कितना हो गया, दैट इज 2cx। तो ये 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं ऐसे, फिर वो साइड x और x कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो क्या आया, a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c, गोइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ गया b स्क्वायर इक्वल टू ac। इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, b स्क्वायर ac का मतलब हुआ योर ए बी सी आर इन जीपी। अगर कहीं भी बी स्क्वायर इक्वल टू AC आ जाता है, इसका मतलब होता है कि योर एबीसी नंबर आर इन जीपी। ऐसे नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी दे देगा आपको कि c प्लस डी एक्स, आगे लिख सकता था क्वेश्चन में, c प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई c माइनस डी एक्स। तो जब इन दोनों में भी लगा देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू बी डी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए बी सी आ गया जीपी में, सी स्क्वायर इन दोनों अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। तो बी सी डी जीपी में हो गया। फर्स्ट यू प्रूफ ए बी सी आर इन जीपी, फिर आपने बताया बी सी डी आर इन जीपी, दैट मीन्स ए बी सी डी आर इन जीपी। इस तरह से आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके नंबर्स को हम लोग जीपी में कैलकुलेट करा सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, सेम नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये आपको याद रखना अच्छे से। जैसे मैं भी 4 नंबर्स के बारे में बात कर रहा था, कभी कभी आपके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज नहीं होंगे क्वेश्चन में, और वो बोलेगा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे, तो उसमें आपको 4 नंबर्स का नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो 4 नंबर लिखेगा वो ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर 4 नंबर लगता है जीपी में, तो फर्स्ट वाले को आप लिखें ए, सेकेंड वाले लिखें ए आर, थर्ड वाले लिखें ए आर स्क्वायर, फोर्थ को लिखें ए आर क्यूब। इस तरह करके करेंगे तो आप 4 जो वेरिएबल थे ए बी सी डी, आप उनको 2 वेरिएबल में इजीली कन्वर्ट कर देंगे। योर फर्स्ट नंबर इज ए, सेकेंड इज ए आर, थर्ड इज ए आर स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज ए आर क्यूब। तो इस तरह से आपके 4 नंबर 2 वेरिएबल ए और आर में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपसे। द 4 नंबर्स, जो 4 नंबर हैं आपके वो जीपी में दिए जाएंगे, तो ये आप स्ट्रेटजी आप लिख लेंगे। योर फर्स्ट नंबर इज ए, सेकेंड नंबर इज ए आर, थर्ड नंबर इज ए आर स्क्वायर एंड लास्ट नंबर इज ए आर क्यूब। तो एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया है 4 डिजिट लेके, अब देखिए मैं उसको करके दिखाता हूँ। वो लिख रहा है क्या कि ए बी सी डी आर इन जीपी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ए बी सी डी आर इन जीपी, जैसे ये लिखा है ए बी सी डी आर इन जीपी। 4 नंबर दे दिए उसने आपको। अब आपसे कह रहा शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो सेम वही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ले लिया मैंने। क्या, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी then show that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square
इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस शो करना है। तो पहले क्या करें, देखो एल एच एस कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसी को सॉल्व करते हैं। अब ए की जगह जब ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, या ध्यान से देखना जरा। बी, बी की जगह क्या आएगा ए आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी, सी की जगह दिखेगा ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर तो आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी बी, बी की जगह क्या लिखा आपने ए आर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी स्क्वायर यानी ये लिखा है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4। डी स्क्वायर, डी क्या है ए आर क्यूब, ए स्क्वायर आर की पावर 6। अब ध्यान से इस ब्रैकेट में देखें तो मुझे ए स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, इस ब्रैकेट से देखा मैंने, मुझे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा, लिख लिया मैंने ए स्क्वायर, और आर भी आ रहा था कॉमन, पावर 2 4, तो पावर 2 कॉमन ले लिया। तो इस वाले से मैंने ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आया आपके पास एल एच एस, इन दोनों मल्टीप्लाई करके निकाल दिया मैंने एल एच एस। अब आपको इसमें आर एच एस भी जाना पड़ेगा, तो आर एच एस क्या, वो भी इंटरेस्टिंग फीचर है, कैसे निकालते हैं देखा ध्यान से। अब मैं सीधे आर एच एस की बात करूंगा। आर एच एस लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूं, आर एच एस को लिखता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, दैट इज योर आर एच एस। ए की जगह क्या लिखा आपने ए, बी की जगह ए आर, तो ए आर, ठीक है, अभी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो बी की जगह ए आर और सी की जगह ए आर स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर और डी की जगह ए आर क्यूब, और पूरे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लिया। तो ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर आर, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, और आर टू और मिलकर हो गया 3, ए और ए हो गया ए स्क्वायर, पावर ऐड करने पे क्या होता है, मल्टी सेम बेस होता है, पावर उसकी ऐड हो जाती है, 3 + 2 5। क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यस, तो ब्रैकेट से मुझे कॉमन आया ए स्क्वायर, फिर आर की पावर 1 कॉमन आया, तो इसका तो यहां से बचा 1, यहां से बचा आर स्क्वायर, और यहां से बचा आर की पावर 4 और पूरे का होल स्क्वायर। अब आया आपका टर्निंग पॉइंट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन कंफ्यूजनेस, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंसेप्ट बहुत ही आसान है, देखें ध्यान से। अब ये बाहर आएगा होल के साथ, तो ये पूरी पावर के साथ आएगा, ए स्क्वायर आर की पावर में पूरे का होल स्क्वायर, बचा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे ए की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर और ये स्क्वायर का स्क्वायर, बाकी जो लिखा था लिखा रहने दिया एज सच। तो ये लिखा मैंने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्लियर। तो जब भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे पहले एल एच एस निकालना होगा, फिर आर एच एस निकालेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, कब, जब आपसे वो 4 नंबर्स के ऊपर बात करेगा। क्लियर है यहां तक। आप देखो आगे लेके चलते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, 4 नंबर्स के ऊपर बात कर रहे थे, 2 नंबर्स के ऊपर बात कर रहे थे, फिर मैंने एक आपका क्वेश्चन लिया है कंपोनेंडो डिवेंडो, फिर हमने अभी एएम और जीएम की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन लेवल किया था, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 इसी को स्टार्ट करते हैं। जब एएम जीएम लिया तो इस नंबर्स में और भी कई सारे फीचर्स आए। जब एएम जीएम क्या आया, जैसे 1 मार्कर क्वेश्चन,
कह रहा इफ एम एंड जीएम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 एंड 5। 1 मार्कर क्वेश्चन में बात कर रहा हूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एम पता है और जीएम पता है, यानी उसने बोल दिया एम की वैल्यू 8 है, जीएम की वैल्यू 5 है। इफ am is 8, gm is 5, कह रहा ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज योर 5 है। कह रहा ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अभी आपने पीछे डेवलप की थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए और जी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 8 टू जा 16x 25 इक्वल टू 0। तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर दी। अब इसको अगर वो 2 मार्कर्स में करेगा तो फर्दर आपसे फिर पूछ लेगा यस इसके फैक्टराइज बताएं, तो आप इसके डी फॉर्मूले से फटाफट फैक्टर कर लेंगे। अगर स्प्लिटिंग होते हैं तो स्प्लिट कर लेंगे, अदरवाइज हमेशा आप 1 सेकेंड 10 सेकेंड तक सोचा करो कि स्प्लिटिंग हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर नहीं होते तो यूज द डी फॉर्मूला। हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, 36 क्वेश्चन करने हैं 3 आवर्स में। तो 1 सेकंड सोचा नहीं हो रहा फैक्टर, सीधे आपने लगाया डी फॉर्मूला, डी फॉर्मूले से जाके फैक्टराइज कर लेंगे और आप इजिली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो एम जीएम के ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, रिपीटिशन के भी क्वेश्चन किए हमने। तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, जीपी की प्रॉपर्टीज, जीपी की प्रॉपर्टीज मतलब जीपी के एम और जीएम के बारे में एनालिसिस कर रहे थे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, आज का जितना पढ़ाया हुआ इसको आज का जो पढ़ाया मैंने